सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਮੈਥ ਵਿਦ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਲ ਸਬਜੈਕਟ ਇੱਕ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੋਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਵੀਡੀਓ PSSB ਕਲਰਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਕਾਫੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ MCQ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ MCQ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 3 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਸੋਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਾਪਾਨੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਾਪਾਨੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਿਸ ਨੇ ਬੰਨਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 1526 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਅਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਸ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ? ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤਾਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ? ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B 62। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੋਰਿੰਗ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਥਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਲਤ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਵਾਲਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਥਨ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖਤ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ।
ਨੈਕਸਟ, ਰੈੱਡ ਕਾਲੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਕਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਕਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਡੈਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਅਵਾਰਡ ਮੌਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲਈ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਵਰਨ ਕਮਲ ਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਰਸੀਦੀ ਟਿਕਟ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰਸੀਦੀ ਟਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਾਟੋ ਨਾਮਕ ਸਾਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਨਾਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਟੋ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨਾਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਧਾਰਾ 246 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਛੇਦ 112 ਦੇ ਤਹਿਤ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਪਹਿਲੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ 5 ਸਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲ ਗੰਨਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਰਲ ਲੈਂਡਸਟੀਨਰ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਾਡੀ ਸੂਰਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਆ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਛਿੱਲ ਕੇ ਜਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਸਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਸਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਫੈਕਟ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ।
इस करके ध्यान रखना। तो जीके असली उही है, तो करंट अफेयर जरूर देखा करो, उस दे नाल नॉलेज दे विच की इंक्रीमेंट होंदा तुहानूं अपने आप ही पता चलेगा। हाँ जी, नासा का मुख्य दफ्तर कित्थे स्थित आ? वाशिंगटन DC दे विच। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, किहड़ी गैस की वरतों उड्डण वाले गुब्बारिਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ है? वैरी वैरी इंपॉर्टेंट एंड नॉलेजफुल। हीलियम गैस की वरतों उड्डण वाले गुब्बारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन, धरती का सब तो नेड़ला ग्रह किहड़ा है? धरती का सब तो नेड़ला ग्रह आ मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट, घाट की बीमारी सकरवी किस दी घाट कारण हुंदी है? हाँ जी, सकरवी बीमारी आ जिहड़ी वो किहड़े विटामिन की घाट कारण हुंदी आ? देखो मैं तुहानूं दस्सिया होया कि विटामिन ए ते याद रखना अंदराता हुंदा, विटामिन बी ते बेरी बेरी का रोग हुंदा, विटामिन सी ते सकरवी रोग हुंदा, विटामिन डी ते रिकटिस का रोग हुंदा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, भारत विच पहली सतह तो सतह मिसाइल किहड़ी है? हाँ जी, भारत दे विच जिहड़ी पहली सतह तो सतह मिसाइल आ जिहड़ी वो किहड़ी आ? पहली की गल हो रही है पृथ्वी आ। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, वायुमंडल विच तापमान बढ़न का मुख्य कारण किहड़ी गैस है? हाँ जी, वायुमंडल दे विच तापमान कदों वधदा वा? कार्बन डाईआक्साइड के बढ़न दे नाल वधदा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बाय चांस इत्थे कार्बन डाईआक्साइड ना होवे, क्लोरोफ्लोरो होवे तां क्लोरोफ्लोरो भी एक तापमान बढ़ाउण वाली गैस आ। ठीक है, नैक्सट, पहलियां खेलो इंडिया यूनीवर्सिटी खेडां कित्थे होईयां? हाँ जी, पहलियां खेलो इंडिया यूनीवर्सिटी खेडां कित्थे होईयां? भुवनेश्वर दे विच। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, भारत के सर्वउच्च खेड सन्मान राजीव गांधी खेड रत्न पुरस्कार का पहला प्राप्तकर्ता कौन सी? हाँ जी, भारत के सर्वउच्च खेड सन्मान राजीव गांधी खेड रत्न पुरस्कार का पहला प्राप्तकर्ता विश्वनाथन आनंद सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, इन्हां विच कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? हाँ जी, इन्हां दे विचों किहड़ा गुण आ जिहड़ा कंप्यूटर का नहीं गा? तो राइट आंसर है जी बुद्धिहीन। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ये कंप्यूटर का गुण नहीं गा। नैक्सट क्वेश्चन, कंप्यूटर साखरता दिवस मनाया जाता है? हाँ जी, कंप्यूटर साखरता दिवस कदों मनाया जाता है? 2 दिसंबर नूं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, विश्व विच सब तो वध कंप्यूटर वाला देश किहड़ा है? हाँ जी, विश्व दे विच सब तो वध कंप्यूटर वाला देश आ संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, कंप्यूटर की समृद्धि आम तौर पर किलोबाइट या मैगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। ये बाइट बनया हुंदा है। हाँ जी, तुहानूं पुछ लिया जाता कि एक बाइट किहदे बराबर हुंदा, ते हुण तुहानूं घुमा फिरा के लिखिया होया कि एक बाइट किस दे बराबर हुंदा? 8 दो आधारी अंकां दा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नैक्सट, 1 किलोबाइट बराबर हुंदा है, हाँ जी, 1 किलोबाइट किस दे बराबर हुंदा? 1024 बाइट्स दे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट, कंप्यूटर भाषा विच 1 मैगाबाइट विच किन्ने बाइट हुंदे हन? हाँ जी, कंप्यूटर भाषा दे विच 1 मैगाबाइट दे विच किन्ने बाइट हुंदे आ? तां इस दा राइट आंसर है जी 10,48,576। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, बाइनरी कोड विच संख्या 7 लिखी जाती है? हाँ जी, बाइनरी कोड दे विच जे संख्या 7 नूं लिखना होवे तां ओह किवें लिखी जाती है? 1 1 1। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, 8 बिटां दे समूह नूं की बोलदे हन? हाँ जी, जो 8 बिटां का समूह बनता वा तो उन्होंने असीं की बोलते हैं? वाइट बोलते हैं। मैं तुहानूं ऑलरेडी दस चुकी हाँ। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट, बाइनरी चॉइस विच किन्ने विकल्प दे हुंदे हन? हाँ जी, जिहड़े बाइनरी चॉइस आ किन्ने विकल्प दे हुंदे आ? 2 विकल्प दे हुंदे आ। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट, 1 बाइट दे किन्ने मूल निरूपित किए जा सकते हैं? हाँ जी, 1 बाइट दे 256 मूल निरूपित किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, भारत विच सब्जियां का सब तो वड्डा उत्पादक किहड़ा राज है? हाँ जी, भारत विच सब्जियां का सब तो वड्डा उत्पादक आ
उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये करंट अफेयर दे विचों आए आ तुहानूं, ठीक है। ये करंट न्यूज़ के अकॉर्डिंग बनाया गया वा। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ, ਮਤੂਆ ਧਰਮ ਮਹਾਮੇਲਾ 2022 ਕਿੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਤੂਆ ਧਰਮ ਮਹਾਮੇਲਾ 2022 ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਮਤੂਆ ਮਹਾਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਨਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਬਣਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਬਣੇ ਆ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਮਹੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਬਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੰਦਨੀ ਖੇਤਰ ਸਮਾਧੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਰਨਾਟਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਖੇਤਰ ਸਮਾਧੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਏਅਰਬੋਰਨ ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਈ ਅਭਿਆਸ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਏਅਰਬੋਰਨ ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਈ ਅਭਿਆਸ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2022 ਲਈ ਨਵੀਂ ਗੇਂਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗੇਂਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਐਡੀਡਾਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਐਡੀਡਾਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2022 ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ? ਅਲ ਰਿਹਲਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਅਲ ਰਿਹਲਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਮੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਸ ਲੇਖਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਰੰਚ ਟਾਈਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਆ? ਡਾਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੌਲੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬੁੱਕ ਆ ਕਰੰਚ ਟਾਈਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਇਹ ਬੁੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ, ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਸ ਨੇ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੇਡਾਂ 2021 ਦਾ ਲੋਗੋ, ਮਾਸਕੋਟ, ਜਰਸੀ ਅਤੇ ਗੀਤ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ? ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੇਡਾਂ 2021 ਦਾ ਲੋਗੋ, ਮਾਸਕੋਟ, ਜਰਸੀ ਅਤੇ ਗੀਤ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਭਾਰਤੀ ਭੂ ਵਿਗਿਆਨ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਰਤੀ ਭੂ ਵਿਗਿਆਨ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਅਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏ ਆ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਰਾਜੂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਪੁਸਤਕ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਪੁਸਤਕ ਦਿਵਸ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ NDA ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ NDA ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਕੌਣ ਬਣੇ ਆ? ਅਜੇ ਕੋਚਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਈ ਡੈਸ਼ ਇਨ ਦਿਸ ਸਕੂਲ ਸਿੰਸ 1975। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸਟੱਡਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਸਕੂਲ ਸਿੰਸ 1975। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਲੈਂਪ ਹੈਜ਼ ਡੈਸ਼ ਆਊਟ। ਹਾਂਜੀ ਦ ਲੈਂਪ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਆਊਟ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਆਈ ਡੈਸ਼ ਹਿਮ ਹੇਅਰ ਜਸਟਰਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਈ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹਿਮ ਹੇਅਰ ਜਸਟਰਡੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਡੈਸ਼ ਦਾ BA ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਜ਼ ਪਾਸਡ
My brother has passed the BA examination. Option number A is the right answer. Next question. Murder of a king. Right answer है जी option number A, regicide. Next question. One who cannot be corrected. हाँ जिन्हां दे विचों किहड़ा correct नहीं गा, किहदे स्पैलिंग सही नहीं गे जां किहड़ा correct नहीं गा, जिहदा कोई मीनिंग नहीं बन रहा, किहड़ा मीनिंगलैस आ। तो राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, इनकॉरिगेबल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टूडेंट डांस दैट बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी टू स्टडी एट होम। हाँ जी, द स्टूडेंट बोरोड दैट बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी टू स्टडी एट होम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर ट्विंस दे लुक डैश। हाँ जी, टफ द ब्रदर्स आर ट्विंस दे लुक डिफरेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई डैश यू टू वी एट द पार्टी दिस इवनिंग। हाँ जी, आई डिजायर्ड यू टू वी एट द पार्टी दिस इवनिंग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी, अगे तुहानूं समानार्थक शब्द पूछा गया है पैरागॉन का। पैरागॉन का समानार्थक शब्द किहड़ा हुंदा है? मॉडल। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नैक्सट फिर तुहानूं किडनैप का पूछा गया है समानार्थक शब्द। किडनैप का किहड़ा हुंदा है? अबडक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी, अगे तुहानूं रैविज का पूछा गया है समानार्थक शब्द। इसका बनेगा रूइन, यानी कि तबाही। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट अगे फैबल का विरोधी शब्द पूछा है, इसका बनेगा फैक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट अगे तुहानूं रिवील्ड का पूछा गया है विरोधी शब्द, इसका बनेगा कंसील्ड। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी, अगे माइनर का विरोधी शब्द पूछा गया है, इसका बनेगा मेजर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट बद शक्ल, बद सूरत, भैड़ा शब्द के होर किहड़ा समानार्थी हो सकता है? करूप। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन। लुधियाना, जलंधर, गुरदेव सिंह की हन। हाँ जी, जो किसी खास स्थान की गल होवे, किसी खास व्यक्ति की गल होवे तो उसनूं असीं की बोलते हैं? नाम बोलते हैं। किसी खास स्थान के नाम की गल, किसी खास वस्तु के नाम की गल, किसी खास व्यक्ति के नाम की गल नूं ही नाम बोलिया जाता है। ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन। वो घर गया तो उसने रोटी खाधी, किस किस्म का वाक है? हाँ जी, वो घर गया तो उसने रोटी खाधी, ये संयुक्त वाक आ। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन। गुणवाचक विशेषण चुनो। हाँ जी, जिवें कि तुहानूं पता है पंजाबी ग्रामर मैं तुहानूं पूरी डिटेल दे विच करवाई हुई आ, इकल्ले टॉपिक वाइज भी करवाई आ, विद डेफिनेशनस एग्जाम्पल्स करवाई आ। तुसीं वो भी चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। गुणवाचक विशेषण चुनो। हाँ जी, गुणवाचक विशेषण चुनना है असीं तो राइट आंसर है जी सुंदर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। विशेषण की हुंदा जिहड़ी किसी चीज़ की विशेषता दर्शाउंदे आ। ठीक है, मतलब सुंदर विशेषता दर्शाउंदा है। हाँ जी, नैक्सट किहड़ा शब्द मुश्किल का समानार्थक नहीं है? हाँ जी, मुश्किल का समानार्थ कठिनाई हैगा वा। हाँ जी, विपता भी हैगा वा। सौख आ जिहड़ा ये है, तो इसका राइट आंसर है वैसे अख। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये की है? समानार्थिक शब्द नहीं गा मुश्किल का। नैक्सट पंजाबी विच सस्से तो डाड़े तक अखर की हन? हाँ जी, पंजाबी दे विच तुहानूं पता है ऊड़ा आड़ा ईड़ी ये की हुंदे आ? स्वर हुंदे आ। ते सस्से तो डाड़े तक की होणगे? व्यंजन। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन। सही समासी शब्द चुनो। हाँ जी, सही समासी शब्द होणगे तारखाना। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। देखो एक चिट्ठी, ये भी स्पैलिंग मिस्टेक आ, टक पोस्ट भी स्पैलिंग मिस्टेक आ, डाक वंडी भी स्पैलिंग मिस्टेक आ, मतलब कुछ बन नहीं रहा। तारखाना एक सही आ। नैक्सट वो शब्द जिहड़े किसी होर शब्द जां शब्दांशां की सहायता नाल बनन की अखवाउंदे हन? हाँ जी, वो शब्द जिहड़े किसी होर शब्द जां शब्दांशां की सहायता नाल बनदे आ, वो चित्त अखवाउंदे आ। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट
ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੰਬੰਧਕ ਚੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਬੰਧਕ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਦਾ, ਦੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਾਰਕ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਕ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੁਰਜੀਤ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹਜੇ ਤਾਂ, ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ 10। ਜੇ ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ 3, ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ। ਨੈਕਸਟ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ, 1919 ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਕਿਸ ਲੀਡਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿਖੇ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਚਲੂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਨ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮੈਥ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਮੈਥ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 15 ਸਮ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 15 ਸਮ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਥ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ 30 ਨੰਬਰ ਚ ਆਉਣੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਨੰਬਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਆਉਣੀ ਆ ਤੇ 15 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥ ਆਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। 91 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 120, 99, 80, 63 ਤੇ 48। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਾਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 120 ਤੋਂ 99 ਬਣਿਆ, 99 ਤੋਂ 80 ਬਣਿਆ, 80 ਤੋਂ 63 ਬਣਿਆ, 63 ਤੋਂ 48 ਬਣਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 48 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਗਾ ਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 120 ਮਾਈਨਸ 99 ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ? 21। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 99 ਮਾਈਨਸ 80 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ? 19। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 80 ਮਾਈਨਸ 63 ਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਈਨਸ 17 ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 63 ਚੋਂ 48 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? 15। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਡ ਨੰਬਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, 21, 19, 17, 15। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 13। ਤੇ 48 ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ 13 ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ 48 ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 13 ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਚਦਾ ਵਾ?
तो 48 चों 13 ही माइनस करके देख लेंगे आ, इत्थे तुहाडे कोले बनदा 35, तो ऑप्शन नंबर ए ही तुहाडा राइट आंसर होएगा 35। ठीक है, इस तरह पहले ही सब तो पहला प्रोसैस ये है, जो भी सीरीज आउंदी आ डिफरेंस वाला मैथड लगा लो। ठीक है, हाँ जी, अगे असीं करते हैं नैक्सट सम, जिहड़ा कि मैं तुहानूं इधर ही करवाउणी आ। तुसीं देख सकते हो 3 नलके दिते आ जिसका नाम आ ABC। ठीक है, 3 नलके आ ABC, तो उन्होंने विचों कहंदा जेकर वो इकट्ठे टैंक नूं भरदे आ, मैं तुहानूं करवाया होया यही प्रोसैस नाल आपां करदे आ। जदों इकट्ठे टैंक नूं भरदे आ तो 6 घंटे दे विच भरदे आ, कितना समा लैंदे आ 6 घंटे का। ठीक है, तो नलकियां नूं 2 घंटे का पहलां तो इकट्ठा चला दिता जांदा वा, उस तो बाद ए ते बी जिहड़ा बाकी टैंक बच जांदा उहनूं 7 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भरदा वा। ए ते बी भरदे आ ना, बाद च पूरा करदे आ, जिहड़ा बाकी बचिया होया किन्ने टाइम च करदे आ 7 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, किन्ना बन जांदा 42, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ कि ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ 42 ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ 42 ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। देखो इत्थे तक तो असीं निबेड़ लिया कि जो भी गल कही सी वो असीं लै ली। ठीक है, टैंक भरन वास्ते इकल्ले सी नूं किन्ने घंटे लगणगे, हुण असीं इकल्ले सी दा कढना। इत्थे तुसीं देखो जदों उन्हां ने सानूं दूजी लाइन दे विच लिखिया होया कि दो घंटे एक टैंक नूं पहलां 2 घंटे जदों भरदे आ, 2 घंटे तो तिन्ने पैप ही चला दिंदे आ, ओह तिन्ने नलके चला दिंदे आ। ठीक है, पर उस तो बाद की आ कि 2 घंटे बाद सी नूं बंद कर दित्ता जांदा, 2 घंटे बाद किहनूं बंद कर दिता जाता सी नूं। तो सी दी असीं समा कढ़ लैंदे, इत्थे किन्ना आ गया 14, मतलब सी है जिहड़ा इन्हां नाल जेकर मिल जाए तो 14 घंटे काम करदे आ। ठीक है, जेकर इन्हां दे असीं समा कढ़ीए तो 14 घंटे काम करदे आ। टोटल काम इन्हां दे किन्ने आ 42, तो इन्हां ने 14 काम जे कीते आ तो असीं इकल्ले सी दा कड्ढण लई इहदे विचों 14 माइनस कर दांगे, इत्थे आ गया 28। हुण असीं की करदे आ एफिशिएंसी चैक करदे आ कि ABC दी एफिशिएंसी किन्नी है, किन्नी हिम्मत इन्हां दे विच 1 घंटे का काम करन दी। तो 1 घंटे का काम करन लई जदों असीं हिम्मत कढदे आ तो असीं इहनूं डिवाइड कर दिंदे हुंदे आ 42, मतलब जो भी एलसीएम लिया उहदे ते असीं दूसरे नंबर नूं डिवाइड कर देना इन्हां दे समय नूं, तो ये साडे कोले आ जांदी है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आ गई 7, 42 नूं 6 ते डिवाइड कीता 7 ही आउंदा ना, एफिशिएंसी तो आ गई हुण 7। ठीक है, हुण इहदी एफिशिएंसी तिन्नां दी मिल के जिहड़ी एफिशिएंसी कड्ढी आ वो किन्नी कड्ढी आ, मैं 7 कड्ढी आ। जदों तिन्नां दी एफिशिएंसी 7 आ तो इन्हां तिन्नां दा जिहड़ा काम आ ए ते बी दा, ठीक है, उहदे विचों जदों असीं पाइप सी नूं इन्हां दे नाल ही चला के 2 घंटे काम कीता ते उन्हां दा जिहड़ा टोटल वर्क किन्ना कीता 28 काम करते। मतलब कि आ जदों तो तिन्ने मिल के काम करदे आ तो टोटल ये 42 काम करदे आ। जदों इन्हां लई जिहड़ा सी आ वो 1/3 दी मान लो छुट्टी लैके चलिया गया। ठीक है, 1/3 ही आया सी, उस तो बाद वो छुट्टी लैके चलिया गया, मतलब बाकी काम ए ते बी ने निमेड़िया, तो वो जिहड़ा इन्हां ने टोटल काम कीते वो 28 काम होया एक दिन दे विच। तो असीं इन्हां दी एफिशिएंसी कढनी, इन्नी तिन्नां दे काम दी एफिशिएंसी हिम्मत आ 7, जदों तिन्ने मिल के करदे आ 7 आ गया, फिर इन्हां दे जिहड़े टोटल काम असीं उहदे ते डिवाइड करता तो किन्ना आ गया 7 चौका 28 4। मतलब ये की है ए ते बी दी एफिशिएंसी कड्ढी आ, मैं ए ते बी दी एफिशिएंसी कड्ढी आ, क्यों मैं इन्ना कुछ कीता, एफिशिएंसी इहदी इदां ही क्यों नहीं कड्ढी, क्योंकि इन्हां नूं जदों 7 घंटे दे विच भरिया वा, टैंक नूं जदों दोनां ने मिल के 7 घंटे दे विच भरिया, उस तो पहलां असीं सी नलका भी तो चलाया सी 2 घंटे दे लई, तो 2 घंटे दे लई मैनूं इह प्रोसैस करना पिया। ठीक है, जिहड़ा सी नलका चलिया। हुण ए ते बी दी एफिशिएंसी किन्नी आ गई 4 यूनिट आ गई। ठीक है, जदों ए ते बी दी एफिशिएंसी 4 यूनिट आ गई, मैं तो कल्ले सी दी पता करनी आ। ठीक है, कल्ले सी दी ही पता करनी है ना, तो कल्ले सी नूं टोटल काम किन्ने आ, इन्हां नूं टोटल काम हैगे आ 42। ठीक है, तो सी दी किन्नी सी दी एफिशिएंसी देखिए, देखो ए ते बी दी एफिशिएंसी 7 आ। ठीक है, 7 चों वैसे भी तुसीं देखो ए ते भी मिल के एक टैंक नूं 7 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भरदे आ, ते इन्हां दी जिहड़ी एफिशिएंसी है मैं जदों माइनस कीती तां किन्नी रह गई 3 आ गई। ठीक है, तो किन्नी आ गई 3 ते मैं डिवाइड किया तो इत्थे तुहाडे कोले बन गया 14। मतलब की आ जिहड़ा सी आ उहने किन्ने घंटे काम करेगा 14 घंटे काम करके टैंक नूं भरूगा सी। इहदे तो तुहाडे कोले सी दा आ गया, क्योंकि टोटल वर्क किन्ना सीगा, टोटल वर्क सीगा इन्हां नूं 42 दे, पर उहदे विचों असीं इकल्ला सी दा कढ लिया। ए ते बी दे किन्ने आ, ए ते बी मिल के काम करदे आ तो 4 यूनिट काम करदे आ,
पर इन्होंने 7 घंटे दे विच टैंक नूं भरिया दोनों ने, जदों कि 2 घंटे इन्हां नाल काम सी ने करवाया सी, उहदे तो मैं सी दे वर्क कढ लिया। सी का वर्क हुण मैं इन्हां दे टोटल वर्क नाल डिवाइड करता तो 14 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इत्थे तुहाडा राइट आंसर है। ठीक है जी, अगे असीं करदे हां नैक्सट सम। हाँ जी, नैक्सट सम मैं बोर्ड ते लिख दिते ने, तुसीं देख सकते हो। जे अगला सम तुहाडा, जे काम दे दिन शनिवार तो शुरू होने वाले 30 दिन के महीने विच सारे ऐतवार दूजे चौथे शनिवार की छुट्टी होवे तां महीने विच काम दे किन्ने दिन होणगे। मतलब तुसीं वर्किंग डे फाइंड आउट करने आ। वर्किंग डे फाइंड आउट करन दे लई उहने की लिखिया कि महीना जिहड़ा शनिवार तो शुरू हुंदा, मतलब शनिवार नूं की हुंदा वा एक, मतलब 1 तरीक दा शनिवार आ तां 2 तरीक दा ऐतवार होवेगा। सेम इसी तरह 2 तो बाद तुहाडे कोले 9 दा ऐतवार होवेगा, 9 तो बाद 16 दा ऐतवार, ते 16 तो बाद 23 दा ऐतवार, 23 तो बाद 30 दा ऐतवार होवेगा। ठीक है, मतलब तुहानूं पता लग रहा है कि इहदे विच किन्ने ऐतवार आ गए, 5 ऐतवार आ गए। ठीक है, ये ऐतवार आ सारे जिन्हां दे ऐतवार आउणगे। उस तो बाद 1 दा शनिवार आया तो 1 तो बाद 8 दा शनिवार आवेगा। ठीक है, 8 तो बाद शनिवार किस दा आवेगा, 8 तो बाद शनिवार आवेगा 17 तुहाडे कोले 15 तरीक दा। ठीक है, 15 तो पहला किहदा आवेगा 22 तरीक दा। हुण उहने बोलिया दूजे ते चौथे शनिवार, मतलब किया कि दूजा ते चौथा शनिवार किहड़ा हो गया, 21 वाला 8 तरीक दा ते एक 22 तरीक दा। 5 ऐतवार हो गए। उस तो बाद 8 से दूजा शनिवार ते चौथा शनिवार किन्ने हो गए, टोटल डे किन्ने बन गए 7, मतलब एक ही हॉलीडे डेज आ गए मंथ दे। तो असी वर्किंग डे फाइंड आउट करने आ। वर्किंग डे दे लई वर्किंग डे दे विच टोटल डे किन्ने आ 30 आ। ठीक है, 30 दिन ही लिखिया उन्हें 30 दिनों के महीने दे विच। ठीक है, 30 दिनों के महीने तो बाद उहदे विच 5 ऐतवार आ ते 2 शनिवार की छुट्टी आ, 7 माइनस करता आंसर आ गया 23, मतलब वर्किंग डे किन्ने आ 23 आ। अगे देखो, एक घड़ी नूं इस तरह रखिया होया वा कि इस दे दोपहर दे 12 बजे वाली जिहड़ी मिनटां दी सूई आ, 12 वजन वाली मिनटां दी सूई आ, वो कित्थे आ, उत्तर पूर्व वाल आ। दोपहर के 12 वजे होया घड़ी ते उहनूं इस हिसाब नाल रखिया होया है। ठीक है, आ घड़ी आ तुहाडी, इहदे विच तुसीं देख सकते हो डायरैक्शनस किहड़ियां बन गईयां। सेम उसी तरह जिवें सानूं पता इधर पूरब हुंदा, इत्थे पच्छम, ते फिर तुहाडे कोल इधर दक्खण ते उपर हुंदा उत्तर। ठीक है, ये डायरैक्शन चार्ट मैं तुहानूं करवाया भी होया। उहने बोलिया कि इहदे ते 12 वजे होया, किन्ने वजे होया 12। ठीक है, जेकर घड़ी ते 12 वजे आ तां इसकी जिहड़ी मिनटां वाली सूई आ वो उत्तर पूर्व वाल संकेत करदी आ। जे 12 वजे ते घंटिਆਂ वाली सूई तां 12 ते ही होगी। ठीक है, पर जिहड़ी मिनटां वाली सूई वो किधर वाला, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व ते ही दिशा ना उत्तर पूर्व वाल संकेत कर रही आ। हुण वो कहंदा तां घड़ी दी सूई 3:30 वजे किस दिशा ते होवेगी। इत्थों असीं बना लैंदे आ। ठीक है, 3:30 भी बन जाएंगे। तुसीं देख सकते हो डायरैक्शन तो सेम यही रहनिया वा। तो ये जिहड़ी घंटे की सूई आ वो तो 3 ते होगी, तो मिनटां वाली सूई 6 ते होगी। फिर ही 3:30 वजणगे ना, 3 मतलब 3:30 लिखे आ। ठीक है, 3:30 लिखे आ, तो यही वाला क्लॉक बनूगा। क्लॉक की सूई इस तरह होगी। उन्होंने गल किहदी कीती है, घंटे वाली सूई की। तो घंटे वाली सूई किस डायरैक्शन दे विच आ, पूर्व वाल आ। घंटे वाली सूई तो तुसीं दस देना कि पूर्व वाल संकेत कर रही है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हाँ जी, अगला असीं क्वेश्चन करते हैं। अगले दे विच उहने लिखिया वा कि जेकर मिनरल नूं QRS TUV दे विच लिखिया जांदा। ठीक है, इत्थे स्पैलिंग मिसटेक लग रही है। एक इत्थे तुहाडे कोल ई आना, N तो बाद E। ठीक है, उन्हें बोलिया कि जेकर मिनरल नूं QRS TUVW ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਂਡ ਆ ਇੱਕ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ABCSD ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਡ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। सेम यही प्रोसैस नाल जेकर असीं देखिए, तुसीं देख सकते हो कि ये विचों R का कोड की बन रहा है U, तो U दे हेठां लिख दो। ये E का कोड की बन रहा वा T, ये हेठां लिखता। A का कोड की बन रहा वा V, ते R का कोड की आ U,
ई दा कोड की आ टी ते आर दा कोड की आ यू। तुसीं देख सकते हो किहड़ी ऑप्शन पई आ यू टी वी। उस तो बाद तुहाडे कोले आर दा कोड की आ यू इत्थे दिता होया यू टी यू, ठीक है वी। तो एक तुहाडे कोले इत्थे बनना सीगा डी रीडर। रीडर आ लिखिआ है ना रीडर, रीडर आना रीडर मतलब मैं डी सम दे विच मिसटेक सी थोड़ी लिखण दे विच बाय मिसटेक इस तरह गलत हो गया है, ठीक है। तुसीं देख सकते हो इहदे विच की आना है रीडर आना है तो डी आवेगा तो डी का इत्थे डी बने मतलब तुसीं ज़्यादा दूर तो जाने की लोड़ ही नहीं, तुहानूं पहले अखर पता लग रहा है कि सही आ तो ऑप्शन नंबर बी ही तुहाडा राइट होवेगा, ठीक है। बाय मिसटेक इत्थे गलती हो गई है लिखण दे विच, अगे तो मैं ध्यान रखांगी पर तुसीं ध्यान नाल सम करना, ठीक है। इस तरह बस एक प्रोसैस हुंदा जिहड़ा तुसीं नोट कर लेना कि इसे प्रोसैस नाल लिखिया गया। इहदे विच असीं कल्ली डी दा यूज़ कीता। हाँ जी अगे असीं करदे हां नैक्सट सम। हाँ जी अगे तुसीं देख सकते हो सारे ही सम मैं तुहाडे सामने लिख दिते ने। सब तो पहला असीं 96 करते हैं। तुसीं देखो 8 तो बाद 24 बनिया, 24 तो 12 तो बाद फिर वो किहड़ा नंबर होवेगा जिहड़ा इन्हां ऑप्शनस दे विच पिया वा कि जिहनूं असीं इस यही प्रोसैस ला के अगे 18 भी बना सकीए। पहला तुसीं देखो 8 तो 24 किवें बनदा, जेकर मैं 3 नाल मल्टीप्लाई करदी हां 24 बनदा, फिर 24 नूं जे मैं 2 ते डिवाइड करदी हां तां 12 बन गया, ठीक है। फिर सेम इसे तरह मैं 12 नूं 3 नाल मल्टीप्लाई करांगी, 12 नूं 3 नाल मल्टीप्लाई कीती तां इत्थे किन्ना बन गया मेरे कोले 36, ठीक है। 12 नूं 3 नाल मल्टीप्लाई की 36 मतलब इत्थे 36 आना। फिर यही प्रोसैस ला के देख लें 36 नूं 2 ते डिवाइड करांगे 18 बनता, हाँ जी बन गया, ठीक है। फिर असीं 18 नूं अगे 3 नाल गुणा करके देखते हैं 54 बनता, बन गया। इहदा मतलब तुहाडा इत्थे 36 आना, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी अगे 3 6 5 20 7 42 ते 9 उस तो बाद देखना किहड़ा नंबर आ। इत्थे तुसीं देख सकते हो, देखण तो ही पता लग रहा 3 5 7 ते 9 ये की आ ऑड नंबर आ, मतलब इन्हां तो इन्हें किवें ना किवें करके ये बनाए गए आ, ठीक है। हुण देखो मैं ऑड नंबर लिख लैनी आ 3 5 7 9 इन्हां तो देखते हैं सेंटर वाले किवें बने आ। 3 नूं मैं 2 नाल गुणा करदी हां तो 6 बनेगा। सेम इसी तरह मैं 5 नूं 4 नाल गुणा करांगी तो 20 बनेगा। सेम इसी तरह मैं 7 नूं 6 नाल गुणा करांगी तो 42 बनेगा। बन रहा ना, तो तुसीं देख सकते हो इत्थे असीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं ईवन नंबर नाल 2 4 6 तो अगे 8 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 बन जाएगा। तो 72 ऑप्शन है, हाँ जी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। मतलब यही प्रोसैस नाल बनना चाहिए जो बाकियां ते भी लग रहा वा, ठीक है। अगे असीं करते हैं सम नंबर 98 जिस दे विच तुहानूं एक सीरीज़ दित्ती आ G2X वाली, ठीक है। तो ये जेकर तुहानूं कोडिंग याद रखनी औखी लगती है, बाई चांस तुहानूं नंबर नहीं आउंदे एग्जाम दे विच, तुहानूं नहीं पता कि किस तरह असीं इहनूं करिए सॉल्व, जां कोड सानूं याद नहीं गए कि जी किहड़े नंबर ते आउंदा वा, तुसीं की करो ABC लिख लो, जो प्रोसैस उहदे ते लग रहा तुहानूं मैं लिख के दिखा दिंदी, क्योंकि ये वाला कंसैप्ट मैं तुहानूं करवाया नहीं ना ABC लिखण वाला, मैं तुहानूं कोड वाला करवाया ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। ABC तुसीं भी इदां लिख लैनी है, कोई एक सैकेंड भी नहीं लगता लिखण लई। तो इहनूं तुसीं की करना वा, हुण तुसीं देखो जी तो बाद तुसीं बनाउणा वा कि फस्ट डिजिट ही जे बनया होया वा, उत्ते तुसीं देखदे जी तो बाद की बनया वा जे बनया, मतलब 2 अखर छड्ड रहा, वो 2 अखर छड्ड के उन्हें की लिया वा जे ले लिया। फिर सेम इसी तरह उन्हें 2 छड्ड के M ले लिया, सेम इसी तरह फिर 2 छड्डे आ M ले लिया, M तो बाद असीं 2 छड्ड दांगे P ले लांगे, मतलब एक तो पता लग गया सानू P आना। फिर देखो अगले ते उही प्रोसैस लग रहा कि P तो बाद 2 छड्ड के S आ रहा, हाँ जी बिल्कुल लग रहा वा, ठीक है। उस तो बाद तुसीं की करना, इत्थे की लिखिया 2, फिर तुसीं देखो 2 तो की बन रहा वा 4, मतलब मैं 2 नाल मल्टीप्लाई कर दी तो 4 बन रहा, फिर की बन रहा 8, मैं फिर 2 नाल मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 8, फिर इत्थे भी इहदा मतलब 16 ही बनेगा, 2 नाल मल्टीप्लाई कर दी है तो 16, मतलब ये तुहाडी सीरीज़ इत्थे कंप्लीट होनी है कि P16 तुहाडे कोल ऑप्शन बी पई है, इहनूं टिक कर दो, ठीक है।
इत्थों ही पई है ना, क्योंकि जे मैं कल्ला P देख के कर दिता P8 भी पिया वा, इस करके मैनू अगला प्रोसैस भी करना पिया। फिर तुसीं इहदे ते करके देखो कि 16 दूना किन्ने होंदे 32, तो 32 भी पिया वा, मतलब सेम यही प्रोसैस लग रहा। अगे असीं X वाला तुसीं करना चाहुंदे हो तो करो, नहीं ऑप्शन B टिक करके टाइम ना खराब करो अपना, ठीक है। अगे देखो X दे विचों मैं 2 माइनस करा, 2 डिजिट माइनस ही करने पै रहे हैं ना, फिर X तो बाद V बनाया होया उहने, तो यह मतलब एक ही माइनस करना पै रहा वा। जो असी एक छड्ड के बैक चल रहा वो V बन गया, फिर B तो बाद एक छड्डना T बन गया, फिर एक छड्ड दो, जो एक छड्डिया तो S बन गया। की उहदे विच ऑप्शन है S वाली, V तो बाद T, T तो बाद S वाली ऑप्शन तो नहीं गी, उहदे विच R आ, ठीक है। अगे असीं देखते हैं भी की प्रोसैस लगा रहा हो। देखो पहला उहने की लिया वा X, X तो बाद उन्हें की किया एक डिजिट छड्ड के V लगाता, ठीक है। तो V तो बाद की लिया, तुहाडे कोल तुसीं देख सकते हो T लिया वा, QRSTUV, ABC भी चेक कर सकते हैं एक बारी। X तो बाद V तो बाद लिया उन्हें T, तो T तो बाद लै रहा हो, ठीक है। T तो बाद एक छड्डे ही जाना ना S, तो R ही आएगा, ठीक तो है, ठीक है। हाँ जी, देख सकते हो तुसी, इसी तरह तुसी यही प्रोसैस लगा के कर लेना है। सॉरी टाइम लग गया कि ध्यान नहीं दे पाई मैं। हाँ जी, अगे देखो, अगे तुसी देखो तुहानू दिता होया है वैरी ईजी एनालॉजी दे विचों आया होया सम है, जिस दे विच की लिखिया होया है कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल की हुंदा सुंदर, फिर उस तो बाद लिखा अगली, ये की हुंदा बदसूरत, मतलब ब्यूटीफुल का ओपोजिट लै रहा हो। उस तो बाद सेम इदा ही हेल्दी, हेल्दी की हुंदा सेहतमंद, सेहतमंद का फिर ओपोजिट की होगा सिक, बीमार होगा, उन्होंने असीं बोलते हैं सिक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगे जेकर 1 जनवरी 2018 नूं 100 वर्ष सी तां 1 जनवरी 2010 नूं किहड़ा डे सी? 1 जनवरी 2010 नूं किहड़ा डे सी? इहदे विच असीं की करना हुंदा, सब तो पहलां तां असीं लिखनी है डेट, ठीक है। फिर असीं ऐड करदे उहदे च मंथ कोड, फिर असीं ऐड करते हैं उहदे विच जिहड़े जिहदे बारे सानू पुछया गया उहदे लास्ट 2 डिजिट, जिहड़े सन बारे सानू पुछया गया उहदे लास्ट 2 डिजिट, फिर उही डिजिट 2 नूं असीं डिवाइड करना हुंदा वा 4 ते, 4 ते डिवाइड करन तो बाद जो आंसर आउंदा कोशेंट च, कोशेंट आउंदा तुहाडा उहनूं असीं ऐड करना, डिवाइड करना हुंदा 7 ते। हुण डेट किन्नी आ? 1 जनवरी दित्ती आ, मंथ कोड की आ? जनवरी पहला महीना ही आ तो 1 आ गया, फिर 10 + 2 डिवाइडेड बाय 7, 10 2 12 13 14, 14 नूं 7 ते डिवाइड किया तो पूरा पूरा मतलब वंडिया गया, पूरा पूरा ही वंडिया जाऊगा, रिमाइंडर की बचूगा 0, तो 0 किहड़े डे का कोड हुंदा वा? शनिवार का हुंदा वा, ठीक है। 0 किहड़े डे का कोड हुंदा? शनिवार का। पर इत्थे की आ, साडे कोले 2000 वाली सीरीज़ चल रही आ, 2000 की गल हो रही आ, तो 2000 की सीरीज़ दे विच असीं 1 माइनस करते हैं, तुसीं शनिवार चो 1 माइनस करोगे, एक दिन पिछे जाओगे, शुक्रवार बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ जी, अगला प्रश्न असीं करते हैं। अगले च तुहानूं दिता होया 56 तो 41 बनाया वा उहने, तो कहंदा देखो 94 तो की बनेगा। पहला असीं देख लैंदे आ कि 56 तो किहड़ा प्रोसैस लग के, मतलब ए डिजिट नूं वरत के 41 बना रहा। मैं करांगी गुणा 5 ते 6 नूं, ठीक है, ऐड कर देवांगी 5 ते 6 नूं, देखो 41 बन रहा, 5 6 30 प्लस 5 + 6 11 तो बन गया 41। सेम यही प्रोसैस मैं 94 ते ला दिनी हाँ, पहला मैं गुणा कर दिनी हाँ, फिर मैं ऐड कर दिनी हाँ, उस तो बाद मैं सारे ही ऐड कर देवांगी, ठीक है। 9 चौका किन्ने हुंदे आ? 36, 9 4 हुंदे आ 13, उस तो बाद तुहाडे कोले बन जाएगा 49, तो 49 वाली ऑप्शन है, हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगे देख लेने आ, अगे तुहाडे कोले दिता होया 30, 30 तो कहंदा 16 बन रहा, तो 24 तो अगे किहड़ा अखर बनेगा? जेकर 30 तो 16 बन रहा, देखो किवें बनेगा? 30 नूं मैं 2 ते डिवाइड करा, 15 बन गया, प्लस 1 ऐड किया 16 बन गया। सेम इसी तरह 24 नूं मैं 2 ते डिवाइड करांगी, 12 बनेगा, 12 बनेगा, फिर मैं 1 ऐड कर देवांगी 13 बनेगा। कि 13 वाली ऑप्शन है? हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हाँ जी, इत्थे तक वीडियो चंगी लगी है तो प्लीज़ वीडियो नूं लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगे असीं करते हैं नैक्सट सम। हाँ जी, अगे तुसीं देख सकते हो नैक्सट सम मैं बोर्ड पर लिख दिते ने तुहाडे सामने, रीजनिंग दे जिहड़े कि बहुत ईजी ने।
सब तो पहला 103 की गल करिए जेकर असी, वो कहते जेकर 14 ते 13 तो 9 बनाया, 27 ते 36 तो 18 बनया होवे तो 46 ते 31 तो की बनेगा। ठीक है, सब तो पहला असी देख लेने 14 13 तो 9 किवें बनया। तो ये तो 9 बनने के लिए पहला असी ऐड करके देख लें 9 बन रहा, 4 ते 1 5, 5 ते 1 6, 6 3 9 बन गया। ठीक है, अगला भी देख लें 27 ते 36 तो 18 बन रहा। हाँ जी, 7 ते 2 9, 9 3 12, 12 ते 6 18, ये भी बन रहा। सेम असी उही प्रोसैस लगा दें 46 तो 31 बन रहा वा। ठीक है, असी की कर दें ऐड कर दें 6 4 10, 10 ते 3 13 ते 1 14, 14 की ऑप्शन देख लो हैगी आ। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। सेम इसी तरह 1 तो 1 ते 4 नूं जोड़िया तो 9 बन गया, 2 ते 8 नूं जोड़िया 18 बन गया। देखो पहला तुहानूं पता लग रहा कि 1 ते 4 नूं जोड़ के 9 किवें बन रहा वा, फिर 2 ते 8 नूं जोड़ के 18 किवें बन रहा। जो तुसीं लिख के देखते हो ना इन्हां चीज़ां नूं तां अपने आप पता लग जाता कि किवें बन सकदा वा। ठीक है, तो फिर सेम इसी उही प्रोसैस असीं इहदे ते लगा के इत्थे बनाउणा कि की बनेगा। तुसीं देखो 1 ते 4 किन्ने हुंदे आ 5, 5 च मैं 4 जोड़िया 9 बन गया। 2 ते 8 किन्ने हुंदे आ 2 8 10 हुंदे आ, 10 च मैं 8 जोड़ूंगी 18 बनेगा। 3 च मैं 6 जोड़े 9 बन गए, 9 च मैं फिर 6 जोड़ूंगी फिर ही 15 बनेगा। हुण तुसीं देखो इहदे विच मतलब कि जो लास्ट डिजिट है ना इहदा पिया इस पासे वो दोबारा तो ऐड करन ते बन रहा वा 1 4 + 4। सेम इसी तरह 2 च जे असीं 8 2 बार ऐड करांगे फिर बन रहा वा 18। सेम फिर इत्थे भी असीं 8 जोड़ दिंदे आ, 8 8 16, 16 ते 7 किन्ने हुंदे आ। हाँ जी, 8 8 16, 16 ते 7 किन्ने हुंदे आ तुहाडे कोले इत्थे जिवें बनेगा। एक मिनट देख लैंदे आ कोई ऑप्शन दे विच मिसटेक तां नहीं हुई। 8 8 16, 16 ते 7 23 हुंदे आ, 23 ऑप्शन हैगी आ। हाँ जी, इत्थे तुसीं देख सकते हो कि जदों लास्ट डिजिट दे विच असीं ਉਹੀ लास्ट डिजिट रिपीट करके जोड़ रहे हैं तो 9 बन रहा। सेम इसी तरह जो असी 2 + 8 हो रहा वा, मैं ये एक बार होर 8 ऐड करूँगी फिर 18 बन रहा। 3 + 6 किया, वो एक बार फिर तो 6 किया, मतलब लास्ट डिजिट रिपीट कर रहे हैं असी। तो सेम यही प्रोसैस इत्थे लगावांगे 8 8 16 + 7 23। तो 23 की ऑप्शन देख लो, ऑप्शन डी राइट आंसर। हाँ जी, अगला प्रश्न करते हैं असी। अगले दे विच देखो जो भी साडे कोल इस तरह के सम आउंदे आ तो असीं की करना हुंदा, पहलां देखना कि किहड़े पेयर बन रहे हैं जां किहड़े नंबर किन्ने बन रहे हैं, फिर उही पेयर असीं बनाउणा शुरू कर दिंने आ। पहलां तुसीं देखो की बन रहा BCA, BCA इत्थे असीं चैक करना की आवेगा। फिर लास्ट ते की दित्ता होया तुहानूं B, इहदे नाल तुहानूं दित्ता होया तुसीं देख सकदे हो AABC, मतलब इन्हूं पता लग गया कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ जो पेयर बन रहे आ वो इन्हां चारां तो ही बन रहे आ AABC, मतलब ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ BCAA लिख लो, मतलब AA रिपीट होना, मैं 4 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। BC ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, A नहीं ਦਿੱਤਾ, A मैं लिख लिया। ठीक है, मतलब BCAA बन गया। फिर अगे ਤੁਹਾਨੂੰ B ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ BCAA ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ BC, तो ਇੱਥੇ C ਆਵੇਗਾ, AA ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ है। उस तो बाद फिर इन्होंने चारों का अलग बना लेने BCAA। ठीक है, एक A तो तुहानूं गिवन ही आ ते एक असीं आप लगा ली, फिर इत्थे तुहाडे कोल BCAA बन रहा, मतलब तुहाडे कोल जिहड़ा प्रोसैस आ ACAB लग के बन रहा। तो ये देख लेने असीं किहड़ी ऑप्शन आ, ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। हाँ जी, हुण असीं अगे करदे आ मैथ का पोर्शन। हाँ जी, अगे असीं करदे आ मैथ का पोर्शन। मैथ दे विच तुसीं देख सकते हो असीं लिख दिता है 106 नंबर सामा तुहानूं दिता होया। किसी कॉलेज दे विच मुंडे अते कुड़ियां दी गिणती का अनुपात 7 अनुपात 8 है। जेकर मुंडे कुड़ियां दी गिणती विच क्रमवार, मतलब कि क्रमवार का मतलब कि जे पहला मुंडियां दी गिणती आई आ तो मतलब मुंडियां दी गिणती दे विच 20% का वाधा हो जाए तो कुड़ियां दी गिणती विच 10% का वाधा होवे तो नवा अनुपात की बनेगा। हुण मुंडियां दी गिणती दे विच कितना वाधा मंग रहा, वो 120 का। जदों भी वाधा हुंदा इनक्रीज हुंदा वा तो असीं 100 च इनक्रीज कर दिंदे हुंदे आ ते परसेंटेज का मतलब की हुंदा बटा 100। सेम इसे तरह
ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਵਾ 10% ਦਾ, ਤਾਂ 100% ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 10% ਐਡ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਦਾ, ਜੇ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 100 ਚ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਈਦਾ, 100 ਚੋਂ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਦਾ ਘਾਟੇ ਤੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 110% ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਟਾ 100। 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 5 ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 6, 7 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 42 ਬਟਾ 5 ਅਨੁਪਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਣਾ 4 ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਣਾ 5, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ 4 11 ਚੌਕ 44 ਬਟਾ 5, ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 42 ਅਨੁਪਾਤ 44, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 21 ਅਨੁਪਾਤ 22। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੈਗ ਵਿੱਚ 25 10 ਤੇ 5 ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, 10 ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 5 ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ 5 ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਆ 25 ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆ 25 ਪੈਸੇ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ x, ਠੀਕ ਹੈ, 1x ਹੋਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, 10 ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਆ 2x। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਨੁਪਾਤ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ x ਸਿੱਕੇ 2x ਫਿਰ 3x, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਇਨ ਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਂ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਏ ਆ। ਹੁਣ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 25 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ x ਬਣੇ ਆ, ਤਾਂ 25x ਹੋ ਗਿਆ, 25 ਸਿੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ 10 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 2 ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤਾਂ 20x ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 3 ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤਾਂ 15x ਬਣ ਗਿਆ, 15x ਹੀ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਲ ਰੁਪਏ ਜੇਕਰ 30 ਹੋਣ, ਟੋਟਲ ਰੁਪਏ ਕਿੰਨੇ ਆ 30, ਇਹ ਟੋਟਲ ਰੁਪਏ ਆ। ਤੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ, 25 ਤੇ 15 ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 40, 40 ਤੇ 20 ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 60, 60 ਬਣ ਗਏ ਪੈਸੇ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 1 ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1/100 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ 1 ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ 100 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਤਾਂ 1/100 ਰੁਪਏ ਹੋਏ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖ ਲਓ, 60 ਗੁਣਾ 100 ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, 60 ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 50। x ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ 50। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਆ 5 ਪੈਸੇ ਦੀ, ਵੀ 5 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ 5 ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਇਆ ਵੀ 3x ਅਨੁਪਾਤ 3x ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਦੇ ਵਿੱਚ x ਨੂੰ 50 ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 5 ਤੀਏ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 15, 150, ਮਤਲਬ 150 ਸਿੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੈਸੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ 5 ਪੈਸੇ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਥ ਦੇ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਤਲਬ 0 1 2 3 4, ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਬਣ ਗਈਆਂ 1 2 3 4 5, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਔਸਤ। ਔਸਤ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੇਠਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ, ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਔਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ 1 ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ 2 ਖਾ ਲੀਆਂ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ 3 ਖਾ ਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ 4 ਖਾ ਲੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੂੰ ਡੇਲੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਐਵਰੇਜ ਆ ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਐਵਰੇਜ ਆ ਤੇਰੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹੈਗੀ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਵੀ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੈਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਇੱਧਰ ਛੱਡੋ 2 ਉੱਧਰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਆਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਦਿਓ 0 1 + 2 + 3 + 4,
बटा संख्यावां दी गिणती। कितनियां संख्यावां बनी टोटल 5, ठीक है। मैं इन्हां दा जोड़ कीता 4 3 7 7 2 9 ते 1 10, 10 प्लस 0 10, 10 नूं 5 ते डिवाइड करांगे, 1 पाया पाया 2 5 10। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2 ही आने। हाँ जी, अगे उन्हें बोलिया भी 1 घंटे के 10 मिनट किहड़ी भिन्न हैं। 1 घंटे के 10 मिनट की भिन्न लिखनी आ। 1 घंटे के विच किन्ने मिनट होंदे आ 60, भिन्न लिखनी आ असीं 10 मिनट की, तो 10 उपर लिख लो, कुछ भी हो सकता। 1 घंटे के 30 मिनट की भिन्न लिखो, 1 घंटे के 23 मिनट की भिन्न लिखो, कुछ भी हो सकता। 1 घंटे में 60 मिनट होंदे आ। हाँ, जेकर तुहानूं आ जांदा 1 घंटे के 10 सैकेंड की भिन्न लिखो, फिर तुसीं लिखना सी 10 बटा 3600, क्योंकि 1 घंटे के 3600 सैकेंड होंदे आ, ठीक है। हुण तो तुहानूं उहने मिनट पूछिया, तो असीं इह वाला प्रोसैस लगा के 0 ਨਾਲ 0 कैंसल, ऑप्शन नंबर ए साडा राइट आंसर होवेगा, ठीक है। जे 3600 लिखिया आ जाए तो 0 ਨਾਲ 0 कैंसल 1 बटा 360 बनेगा। इस तरह तुसीं लगा सकते हो सकता घंटे की जगह तो दिन लिखिया जाए, वो बोल दवे कि एक दिन दे 1 घंटे की भिन्न लिखो, तो 1 घंटे दिन दे विच किन्ने घंटे होंदे हो तुसीं हेठां रख लोगे, जिन्नी बारी पूछा गया वो उपर रख लोगे, ठीक है। कुछ भी आ सकता तुहानूं, तो ध्यान नाल लगाना। हो सकता दर्जन की गल हो जाए, तो दर्जन दे 1 दर्जन दे विचों 2 नंबर जां 2 संख्यावां की भिन्न किहड़ी बनेगी, तो 2 बटा 12 लिखोगे, वह भी 1 बटा 6 आएगा, ठीक है। इस तरह के आ सकते हैं सम। अगे 2 संख्यावां 3 अनुपात 5 दे विच हन। मान लो पहली संख्या की आ 3x आ ते दूजी की आ 5x आ। वो कहता 2 संख्यावां 3 अनुपात ते 5 दे विच हन। असीं जिन्ने भी अनुपात हुंदे आ, जां जेकर असीं ट्रेडिशनल मैथड नाल करिए तां असीं उहनां नूं x दे नाल ही लिखदे आ, ठीक है। जो भी चीज़ां गिवन होंदियां, तुसीं देखो एक तुहानूं दित्ता होया वा संख्या 3x, दूजी दित्ती आ 5x। वो कहता जदों मैं पहली संख्या दे विचों 3, पहली संख्या ये 3 माइनस कर दां अते दूजी संख्या दे विचों 1 माइनस कर दां, तां अनुपात मेरे कोले 1 अनुपात 2 रह जांदा, मतलब करता असीं माइनस, ठीक है। जदों असीं पहली संख्या दे विचों दूजी संख्या घटावांगे तां अनुपात की रह जांदा वा 1 अनुपात 2 बन जाता। तो वड्डी संख्या पता करो भी किहड़ी होवेगी, ठीक है। वड्डी संख्या किहड़ी होवेगी, 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3 लेके चलीए जेकर असीं, तो 3x इज इक्वल्स टू 6 बन गया। तो तुहाडे कोले जिहड़ी संख्या वा एक तां बन गई, x कितनी आ गई तुहाडे कोले 2 आ गई। मान के चलो भी x कितनी आ गई तुहाडे कोले 2 आ गई। जेकर तुसीं चैक करना होवे तो तुसीं दूजी चों भी कढ सकदे हो। 5x माइनस 1 बराबर है 2, 5x इज इक्वल्स टू तुहाडे कोल इत्थे बन गया 3, तो x आ गया तुहाडे कोले 3 बटा 5, ठीक है। पर तुसीं की करना, सानूं तां कल्ले x दी नीड आ, असीं 1 भी लैके चल सकदे हां, जां फिर तुसीं की करो कि इत्थों ही इहनूं मॉडिफाई कर सकदे हो। इत्थों ही मॉडिफाई करन दा मीनिंग की आ कि तुहानूं उहने की दित्ता वा कि घटाउण ते अनुपात बचदा वा, ठीक है। पहली हुण तुसीं देख सकदे हो कि पहली संख्या दे विचों जदों असीं 3 घटाता, दूजी संख्या दे विच जदों असीं 1 घटाता, तो साडे कोले नवां अनुपात बनिया 1 अनुपात 2। जे नवां अनुपात बनिया मतलब इन्हां दा ही अनुपात बनिया, ठीक है। तो इन्हां दे अनुपात दा मतलब की आ कि बटियां दे विच लिख देना। हुण मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लैंदी आ, तो 3x माइनस 3 इनू 2 नाल मल्टीप्लाई हो जाऊगा, इधर आके 1 नाल हो जाऊगा, 1 नाल कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करांगे आंसर सेम आ, ठीक है। इत्थे बन गया तुहाडे कोले 6x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 1। एक्स वाले 1 साइड ले आओ तो कॉन्सटेंट टर्म्स 1 साइड ले जाओ। इत्थे बन गया तुहाडे कोले 5 प्लस माइनस माइनस हुंदे आ, साइन वड्डे दा लगदा हमेशा ही, तो एक्स तुहाडे कोले कितना बन गया 5 बन गया। हुण एक्स तुहाडे कोले 5 आ, पहली संख्या 3x आ, दूजी 5x आ। मैं 3 पुट करा 5 3 5 15, ठीक है। दूजी संख्या 5 5 25, तो संख्या तुहाडे कोले वड्डी संख्या किहड़ी आ 25। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हाँ जी, अगे देखो तुसीं 28 का 70% पता करो। 28 का 70% पता करना वा तो 28 गुणा 70% का मतलब की होंदा 100, 0 नाल 0 कैंसल, ठीक है। 7 नूं तुसीं पहलां की देखो कट्टे हो रहे हैं, इत्थे मैं कट दिन्नी आ, इत्थे 5 आ जाना, 2 ते कट किया जदों ते 28 14 दूना 28 हुंदा ते 14 ते कट करता। फिर 14 नूं तुसीं 7 नाल जदों मल्टीप्लाई किया, 7 चौका 28, 7 ते 2 98 आएगा। फिर तुसीं इहनूं 5 ते डिवाइड कर देना। जदों तुसीं इहनूं 5 ते डिवाइड करोगे तो तुहाडे कोले 1 पाया 5 4 रह जाने आ, 8 5 40, 9 5 45 बन जाना वा, ठीक है 45।
ਤੇ ਬਟੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ कोल इत्थे बच जाना वा मगर 3 ठीक है 6 5 किन्ने होंदे पॉइंट ला के 30 तो ऑप्शन नंबर ए तुहाडा राइट आंसर बन जाना। हाँ जी अगला सम करते हैं असीं। हाँ जी देख सकते हो अगे तुसीं नैक्सट सम मैं तुहाडे सामने लिख दिते ने। एक आदमी ने एक कुर्सी 180 रुपए विच खरीदी। कोई कुर्सी खरीदी उन्हें 180 रुपए दे विच 240 च बेचती। हुण 180 च खरीद के 240 च बेचती तो पता लग रहा है कि उन्होंने लाभ ही होया होवेगा। ठीक है तो लाभ प्रतिशत असीं पता करना वा। लाभ किन्ने दा होया पहलां तुसीं देखो 180 च उन्हें खरीदी आ ते 240 च उन्हें बेचती। जदों माइनस करोगे तो लाभ हो गया उन्होंने 60 रुपए का। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला की आ लाभ बटा खरीद मुल यानी कि कॉस्ट प्राइस गुणा 100। सेम इस तरह तुसी हानि पता कर सकते हो। हानि दे विचों भी तुसी देख लेना कि किन्ने दा लॉस होया तो वह फॉर्मूला भी हानि प्रतिशत बटा कॉस्ट प्राइस गुणा 100 हुंदा। ठीक है हुण लाभ किन्ना होया 60% का। कॉस्ट प्राइस किन्ना वा 180 गुणा कर दो 100 नाल 0 कैंसल। ठीक है इत्थे तुहाडे कोले बन गया 3 ते 100 इधर पिया वा क्योंकि 6 के भाड़े तो मैं कट किया तुहाडे कोल बन गया 100 बटा 3। 100 बटा 3 नूं तुसीं डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन दे विच लिखोगे तो तुहाडे कोल बनेगा 33 सही 1 बटा 3 क्योंकि 33 3 99 प्लस 1 100 हुंदे आ। ठीक है इस तरह तुसीं भी मिक्स फ्रैक्शन दे विच लिख सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन दे विच मैं तुहानूं ऑलरेडी सिखाया होया पर जिहड़े स्टूडेंट्स ने हजे भी नहीं किया वो टॉपिक मैं तुहानूं एक बार फिर तो दस दिंदी हाँ। 100 नूं असीं 3 ते डिवाइड करांगे 3 3 9 हुंदे आ। ठीक है फिर उस तो बाद फिर 3 ते जाएगा इत्थे आ गया एक रिमाइंडर। जो भी साडा डिवाइजर हुंदा उहनूं तुसीं हेठां लिख लो। जो तुहाडा क्वेश्चन मतलब रिमाइंडर आया उहनूं उपर लिख लो। जो साडा आंसर हुंदा क्वेश्चन उहनूं असीं साइड ते लिख लैंदे आ। ते हुंदी मिक्स फ्रैक्शन ऑप्शन नंबर सी तुहाडा राइट आंसर है। हाँ जी अगे असीं करदे आ नैक्सट सम जिहड़ा कि मैं तुहाडे सामने लिख दिता होया है बोर्ड ते। कुछ धन ते सधारण ब्याज। हाँ जी कोई तुहानूं धन दिता होया वा जानी कि कोई राशि दिती हुई आ जिहड़ी की आ मूल धन आ। मान लैंदे आ असीं मूल धन जिहड़ा धन जिहदी गल हो रही आ वो की आ एक्स आ। वो कहता कुछ धन ते जानी कि एक्स ते सधारण ब्याज मूल धन का 1/9 हो जाता। मतलब ये सधारण ब्याज सिंपल इंटरस्ट की बन गया 1/9x। ठीक है मतलब कि मूल धन का 9वां हिस्सा बन गया जिहड़ा सधारण ब्याज आ। अते दर प्रतिशत सालाना सालां दी संख्या के बराबर आ। हुण दर प्रतिशत मतलब रेट रेट आ जिहड़ा वो किहदे बराबर है टाइम के बराबर आ। ठीक है तो इत्थों तुहानूं पता की करना तुसीं दर प्रतिशत पता करना। तो दर दा की फॉर्म पहलां तुसीं देखो मैं तुहानूं इक्को एक फॉर्मूला करवाया तुसीं उहनूं ही अप्लाई करके सारे सम अपने फाइंड आउट कर सकते हो। मूल तुहानूं असीं प्रिंसीपल बोलते हैं जानी कि पी बोलते हैं। वैसे चलो पंजाबी च फॉर्मूला करवा दिंदी हां मैं तुहानूं सिंपल इंटरस्ट का फॉर्मूला हुंदा है मूलधन गुणा दर गुणा समा बटा 100। मूलधन कितना दिता होया है मूलधन एक्स आ सिंपल इंटरस्ट 1/9x आ। ठीक है तो दर कितनी दिती हुई आ आर तो समा कितना दिता होया टी जिहड़ा कि आर दे ही बराबर आ बटा करना तुसी 100 दे नाल। ठीक है तो इधर 100 आके की हो गया मल्टीप्लाई क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा वा एक्स नाल एक्स कैंसल दोनों साइड एक्स पिया वा तो इत्थे तुहाडे कोले बन गया आर स्क्वेयर। ठीक है आर स्क्वेयर ही बनेगा ना। तो आर स्क्वेयर जो तुहाडे कोले बनया तुसी की कीता आर स्क्वेयर आ जिहड़ा दूजे पासे जाके की बन जांदा हुंदा रूट तो इत्थे तुहाडे कोले आ गया 10/9। 10/9 नूं तुसी 10/9 दी ऑप्शन है सॉरी 10/3 10/9 सी देखो इत्थे 100/9 सी नूं भी लिख सकदी हां 10 गुणा 10 ते 3 गुणा 3 रूट दे विचों एक बाहर आ जांदा हुंदा तो 10/3 आ गया। हुण मैं इहदी मिक्स फ्रैक्शन लिखां तो 3 3 9 ते 1 10 हुंदी आ मतलब इहदी मिक्स फ्रैक्शन की बनेगी ते 3 सही 1/3 3 ते 9 प्लस 1 10 जिवें कि मैं प्रीवियस सम दे विच करवाया सेम वही स्टैप लगे तुसी कढ सकते हो। ठीक है ऑप्शन नंबर सी इत्थे राइट आंसर बनेगा। अगे तुसी देख सकते हो देखो वो कहता जेकर ए स्टार बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर नूं दर्शा रहा तो 3 स्टार 5 की होवेगा। देखो ए की दिखा रहा ए स्केयर तो 3 की बनेगा 3 का स्केयर गुणा 5 पर गुणा की जगह तो उन्हें की किया स्टार की जगह तो की आया हुआ प्लस तो बी स्केयर बी किन्ना वा बी हैगा तुहाडे कोले 5 का स्केयर
ठीक है 3 का स्केयर 9 होंदा 5 का स्केयर 25 होंदा 9 ते 25 34 बन गया तो 34 इत्थे तुहाडा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर तुहाडे कोले आंसर बनिया 34 अगे असीं सम करदे हां नैक्सट सम वैरी ईजी तो इस सम दे विच तुसीं देख सकदे हो 2 बसां दित्तियां वा जिहड़ियां एक स्थान तो दूजे स्थान ते जांदियां ने ठीक है पर स्पीड कितनी आ 2 बसां वा 2 बसां एक स्थान तो दूजे स्थान ते जाण लई पहली दी स्पीड आ 45 किलोमीटर प्रति घंटा दूजी दी स्पीड आ 60 किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है इस गति नाल चलदियां ओह जेकर दूजी बस 11/2 घंटे घट लेंदी आ जेकर दूजी बस 11/2 घंटे घट लेंदी आ तो पहली बस की यात्रा की दूरी पता करो मैं मान लैनी आ दूरी कितनी आ एक्स आ दूरी कितनी आ एक्स आ तो दूजी बस की जेकर असीं गल करिए डिस्टेंस का फार्मूला दूरी का फार्मूला हुंदा स्पीड इंटू टाइम हुण मैनूं स्पीड भी पता डिस्टेंस भी पता मैनूं पता की नहीं गा टाइम ठीक है मैं इत्थों टाइम कढ लैनी आ टाइम पहली दे अकॉर्डिंग बन गया तुहाडे कोले पहली दे अकॉर्डिंग बन गया x/45 ते दूसरी दे अकॉर्डिंग टाइम तुहाडा बन गया x/60 ठीक है जो तुहाडे कोले ये टाइम आ गया तो उन्हें दिता होया कि जिहड़ी दूजी गड्डी आ पहली गड्डी नालों दूजी गड्डी 11/2 घंटे का घट समा लैंदी आ ठीक है तो इस तरह तुसीं इहनूं फाइंड आउट कर सकते हो हुण की करना वा असीं कुछ भी नहीं एलसीएम ले लांगे एलसीएम लैण दे लई तुसीं की करना वा सब तो पहला जिहड़े भी स्टूडेंट्स नूं एलसीएम नहीं लेना आउंदा वो भी मैं तुहानूं दस दिंदी आ इत्थे की है 45 60 जां तां तुसीं इदां दा नंबर सोच लो कि जिहदे विच 60 भी आउंदा होवे ते 45 भी आउंदा होवे पूरे पूरे कट्टे जाणे वो पहाड़े ते डिवाइड करन तो बाद ठीक है पहला देखो मैं 5 ते ही चली जानी आ चलो 5 तो बाद इत्थे कितना बन गया 9 ते इत्थे कितना बन जाना तुहाडे कोले जां पहला 3 ते जा वड़ो 3 ते जदों असीं करांगे तो इत्थे बन जाना तुहाडे कोले 15 ते इत्थे बन जाना तुहाडे कोले 20 फिर असीं 3 ते चले जाने आ इत्थे बन जाना तुहाडे कोले 5 ते इत्थे बन जाना तुहाडे कोले 20 क्योंकि 3 दे पहाड़े च नहीं आउंदा अगे असीं 4 दे पहाड़े च जाने आ 4 दे पहाड़े च 20 आउंदा 4 ते बाकी एज इट इज़ लिख लो ठीक है 20 आउंदा वा 5 ते फिर उस तो बाद तुसीं 5 ते जाओगे तो तुहाडे कोले उदों तक ये प्रोसैस करी जाना जो तक एटा 1 1 ना बन जाए ये हुंदा एलसीएम जिहड़े असीं मल्टीप्लाई करदे हां 3 3 9 9 चौका 36 36 नूं तुसीं 5 नाल गुणा करोगे 36 नूं 5 नाल गुणा कीती 6 5 30 ठीक है 3 5 15 ते 3 18 180 बन गया मतलब तुहाडा इत्थे एलसीएम आ गया 180 हुण देखो 3 3 9 9 5 45 बच की गया 4 4x माइनस ठीक है इत्थे तो 60 बन ही रहा वा तो इत्थे 60 किवें बन गया 4 5 20 हुण मेरे कल्ला 3 चाहिए मतलब 3x तो x/180 बराबर तो 11/2 दे पिया ही आ 11/2 दे पिया 180 इधर डिवाइड हो रहा उधर जाके तुसीं गुणा कर दो गुणा करोगे तो इत्थे तुहाडे कोल बन गया 90 तो 990 तुहाडा आंसर आ गया ठीक है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर कि 990 तुहाडा आंसर आ गया हाँ जी अगे तुसीं देख सकते हो नैक्सट सम मैं तुहाडे सामने लिख दिता है जेकर वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर है जिमें कि मैं तुहानूं दस्सिया सी वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला की हुंदा वा 4 × ए की आ वर्ग की साइड वर्ग दी सारियां भुजावां सेम हुंदियां परिमाप का मतलब हुंदा सारियां भुजावां दा जोड़ कर दो वर्ग दी 4 भुजावां हुंदियां वा तो वह कितनियां दित्तियां होईयां वा उहदा परिमाप दिता होया 16 सेंटीमीटर तो वर्ग की मैनूं एक भुजा पता लग गई कि 16/4 कितनी हुंदी है 4 सेंटीमीटर की हुंदी है ठीक है क्योंकि वर्ग का परिमाप हुंदा वा कि किसी भी चीज़ का परिमाप कढ़ना तो सारियां भुजावां दा जोड़ करना पैंदा सारियां भुजावां दा जोड़ करता मैं तो मेरे को परिमाप तो पहले ही गिवन 16 तो 16/4 4 ही क्यों आया क्योंकि वर्ग दी सारियां भुजावां बराबर हुंदियां इस करके जो मैं कल्ली कल्ली भुजा नूं जोड़ूगी 4 बन जूगा तो मेरे को एक भुजा आ गई 4 सेंटीमीटर हुण वर्ग का खेत्रफल हुंदा भुजा गुणा भुजा जानी कि 4 × 4 तो यह बन गया 16 सेंटीमीटर का स्केयर ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर अगे असीं करदे हां नैक्सट सम एक लंब चक्री वेलन जिसकी उचाई
14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, h ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਉਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਦਾ, ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ, ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੁੰਦਾ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਐਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, 88 ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤਾ, 88 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ 22/7, ਆਰ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਏਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ 88 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ 7 ਦੁਣੀ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 14, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 22 ਦੂਣਾ 44, 44 ਦੂਣਾ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 88, 88 ਗੁਣਾ ਆਰ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਗਿਆ 88। 88 ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਿਆ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਗੁਣਾ 4 ਪਲੱਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ 21 ਗੁਣਾ 3, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 21 ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖਤਾ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 4 ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 3, ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੱਸ ਲਗਾਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ 5/7 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰ ਦੇਣਾ 7/2। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੋ, ਜੋ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਪਿਆ ਵਾ ਉਹਦਾ ਉਲਟ ਕਰ ਦੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰ ਦੋ। ਦੇਖੋ 5 ਉੱਪਰ ਵੀ ਆ 5 ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ। 7 ਉੱਪਰ ਵੀ ਆ 7 ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ। 1 ਦੂਣੀ 2 ਦੂਣੀ 4, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 2। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।